Jai Hind student, welcome to biology class. As you all already know, we have started the chapter sexual reproduction in flowering plant. And in the last lectures, we have discussed about the formation of megaspore, microspore. So now once the formation of megaspore and microspore is done in a flower, then they need to be brought together. उनको साथ में लाने की ज़रूरत होती है, ठीक है, because both the gametes, both male and female gametes, they are formed inside the flower. अब इन दोनों का फ्यूजन होता है, but as you all know कि in case of flower both the gametes they are non motile, ठीक है, दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं. सो दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए उनको साथ में लाने की ज़रूरत होती है. अब इसके लिए वी नीड सम एक्सटर्नल एजेंट, कुछ हमें एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से दोनों को साथ में लाया जाता है. नाउ दिस प्रोसेस इज़ नोन एज पॉलिनेशन. So pollination, what is pollination? It is the process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma. Okay, now this pollination is carried by many external agent. बहुत सारे external agents होते हैं जो responsible होते हैं pollination के लिए, like air, like water, insects. So these are the few pollinating agents which brought pollination. Now first let's discuss about the types of pollination. So basically we have read that the pollination is of two types, that is self pollination and cross pollination. ये हमने पढ़ा है. सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ one flower transferred to the stigma of the same flower or another flower of the same plant, then it is known as self pollination. And cross pollination, when the anthers or when the pollen grains of one flower they are transferred to the stigma of the another flower of the different plant of the same species, then it is known as cross pollination. So self pollination is again, it is of two types, that is autogamy and geitonogamy. Autogamy होता है and geitonogamy होता है. Autogamy is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a same flower. एक ही फ्लावर में आपस में ट्रांसफ़र हो जाता है जिसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं. अब इस ट्रांसफ़र के लिए देयर हैज़ टू बी फ्यू कंडीशंस, कुछ कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए तभी ये ट्रांसफ़र पॉसिबल है. पहली बात तो द एंथर्स एंड स्टिग्मा दे शुड लाई वेरी क्लोज, पास में होने चाहिए, तभी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा. और दूसरा जो है, it also requires synchrony in the pollen release and stigma receptivity. ये क्या होता है? synchrony means कि जब जो है स्टिग्मा जो है, जब वो pollen grains को एक्सेप्ट कर सकता है वो पीरियड, और जब पॉलेंस जो हैं रिलीज़ हो रहे हैं एंथर्स से वो पीरियड, वो आपस में मैच करना चाहिए. ठीक है, अगर मैच नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं पॉसिबल होगा. तो एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, दोनों में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए कि पॉलन ग्रेन उसी समय स्टिग्मा उसी समय पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करे जब पॉलन ग्रेन्स भी मैच्योर हो और स्टिग्मा भी उसी समय एक्सेप्ट करने के लिए ready हो. So this is known as synchronization. Now few plants like Viola, Oxalis, Commelina. So here two types of flowers are present, that is chasmogamous flowers and clistogamous flowers. Now क्या होते हैं ये? This is very important because it is also asked in your board exams. Chasmogamous flowers होते हैं, such flowers they have exposed anthers and stigma. इनके एंथर्स और स्टिग्मा जो दोनों ही होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, बाहर होते हैं दोनों, ठीक है. बट इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं, ये फ्लावर्स जो हैं ओपन नहीं होते हैं, ठीक है, ये फ्लावर्स हमेशा बंद रहते हैं, इसलिए इनमें जो है अंदर ही अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है. इसीलिए इसमें सिर्फ ऑटोगैमी होती है, ग्यूटेनोगैमी नहीं होती है. और इसमें किसी पॉलिनेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी एक्सटर्नल एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज सच फ्लावर्स आर क्लोज्ड. ठीक है, वो हम बंद रहते हैं और उनमें अंदर ही अंदर जो हैं पॉलेंस जो हैं दे आर रिलीज्ड and they are accepted by the stigma and pollination occur. Now
सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्लावर. नाउ नेक्स्ट आते हैं, दैट इज ग्यूटनोगैमी. ग्यूटनोगैमी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, but the difference with autogamy is that here the transfer of pollen from anther of one flower to the stigma of another flower occur on the same plant. Means here flowers are not same. In autogamy you have seen the anthers, they are released and they are accepted by the same stigma of a same flower. ठीक है, उसी से एंथर निकला और उसी फ्लावर के स्टिग्मा में चिपक गया, दैट इज ऑटोगैमी. बट हेयर क्या है, यहाँ प्लांट सेम है बट दो फ्लावर्स हैं, एक में से एंथर निकला, ओके, एक में से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में स्टिक हो गए. सो सच प्रोसेस इज नोन एज ग्यूटनोगैमी. सो हेयर यू कैन से कि जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी. ठीक है, एक तरह से ये सिमिलर है ऑटोगैमी, बट इन दिस केस पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड. ऑटोगैमी में हमने देखा था पॉलिनेटर्स नहीं ज़रूरत थी, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं सेम फ्लावर में ही होता है. ओके, बट इन दिस केस एक्सटर्नल एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड. Okay, so this is your the second type, that is geutonogamy. Now the third type of your pollination is, that is xenogamy. Okay, so here the transfer of pollens from anther to stigma of a different plant. So here the two plants are there, but the plants should be of same species. That is very important. Plant एक ही species के होने चाहिए और दो plants की ज़रूरत होती है. एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं और दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में स्टिक हो जाते हैं. सो सच ट्रांसफर ऑफ pollen grains is known as xenogamy. So here the pollination bring genetically different types of pollen grains to the stigma. यहाँ पे chances of variations होते हैं. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में chances of variation बहुत कम होते हैं क्योंकि सेम ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाता है, पर यहाँ पे जो है फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं इन केस ऑफ xenogamy. Okay, now next let's talk about the agents of pollination. Now pollination की हमने बात की, but how this pollination occur, what all are the agents of pollination. Okay, so as you all know, so the plant use both the biotic agents also and abiotic agents also for pollination. बायोटिक एजेंट्स की अगर हम बात करें, लिविंग एजेंट्स होते हैं जिसमें एनिमल्स स्पेशली आपके इंसेक्ट्स आते हैं. एंड एबायोटिक एजेंट्स की बात करें तो एयर एंड वाटर. सो पॉलिनेशन अकर्स थ्रू एयर एंड वाटर. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पॉलिनेशन बाय विंड. सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म, बहुत कॉमन, ये मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन बाय विंड ही होता है. ओके, सो बट द प्लांट हैज़ टू एग्जिबिट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, तभी उसमें पॉलिनेशन बाय विंड होगा. सबसे पहली बात है, प्लांट पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन विद लार्ज फेदरी स्टिग्मा. द फर्स्ट कंडीशन इज़ कि प्लांट्स के पास जो स्टेमन्स होते हैं वो एक्सपोज होने चाहिए, बाहर होने चाहिए, एंड इट शुड बी लार्ज एंड द स्टिग्मा शुड ऑल्सो बी फेदरी, बिल्कुल लाइट वेटेड होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ जो पॉलन्स हैं दे शुड बी लाइट एंड दे शुड बी नॉन स्टिकी, जिससे कि ये ईजिली विंड इसको कैरी कर सके, क्योंकि स्टिकी होंगे तो वो किसी भी सरफेस पे स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, एंड देन विंड विल नॉट एबल टू कैरी देम. सो टू फैसिलिटेट द movement of pollens they has to be light weighted and non sticky. Now in case such flowers which are pollinated by wind, the flowers which are pollinated by wind, they usually, most of the flowers they have single ovule. अक्सर इसमें एक ही ओव्यूल होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, देयर आर एक्सेप्शंस. एंड सो द फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. इसमें इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11. इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ स्टॉक. ठीक है, अरेंजमेंट होता है फ्लावर का जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स क्लस्टर में अरेंज रहते हैं, एंड दिस अरेंजमेंट कैन बी बेसिपेटल, कैन बी एक्रोपेटल, दैट यू ऑल हैव स्टडीड. ओके, सो तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए जो फ्लावर्स होते हैं इनमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है. फ्लावर्स जो हैं वो इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज रहते हैं. एंड अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज़ ग्रास. So grass में you can see pollination by wind. It is the
common example. Now next, let's talk about pollination by water. So this pollination is very rare because it is very rare in most of the flowering plant because it occurs in only few aquatic plants जो पानी में रहते हैं, like Vallisneria and Hydrilla. So here what happens in most water pollinated plants, here the pollens grains जो हैं वो long होते हैं और ribbon like होते हैं, long और ribbon like होते हैं, and the pollen grains they are protected by a mucilaginous covering. एक sticky mucilage की covering होती है sticky, जो कि water को अंदर जाने से prevent करती है. सो इसकी वजह से pollen grains हैं वो wet नहीं होते, गीले नहीं होते. Now in most of the plants like water hyacinth, water lily, so here what happens, here the flower emerge from the water level. Here what happens, जो flowers हैं water level से ऊपर आ जाते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं, and then they are pollinated by insects. तब उसमें pollination insects के through हो जाता है. Now next is your pollination by insects. So here the plants they use butterfly, bees, wasps. So they are the main pollinating agents, and for this the flower need to hold some characteristic. कुछ इसमें कैरेक्टरिस्टिक फ्लावर्स में पाए जाते हैं जो इंसेक्ट्स पॉलिनेट करते हैं. जैसे फ्लावर्स जो हैं लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, स्वीट स्मेलिंग होने चाहिए, फ्रेगनेंस अच्छी होनी चाहिए और नेक्टर होना चाहिए, सो दैट द इंसेक्ट्स आर ईजिली अट्रैक्टेड. और इन सब फीचर्स को हम बोलते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स. सो फ्लोरल रिवॉर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में. सो इट इज़ एनी पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट्स द पॉलिनेटिंग एजेंट. ये कोई भी फ्लावर का पार्ट होता है जिससे पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक हम नेक्टर की बात करें, you have seen other also like colorful petals, sweet smelling. So these are all floral rewards. Now these floral rewards, if you talk about these floral rewards, they can be in the form of providing safe places to lay eggs. Okay, for example the tallest flower, that is Amorphophallus. So here what happened, ये जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये जो हैं इंसेक्ट्स को एक तरह से हेल्प भी करते हैं, और यू कैन से कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं. इंसेक्ट्स को ये प्लेस देते हैं कि ताकि वो अपने एग्स को सेफली ले कर सकें, और उसके रिस्पेक्ट में इंसेक्ट्स क्या उनको देता है, वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है. अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज़ yucca and it is a type of plant yucca, and a moth is a insect. So इनमें symbiotic association देखा जाता है, symbiotic relationship जिसको mutualism या symbiosis भी बोलते हैं. So here the moth is dependent on the plant since it deposit its egg in the locule of the ovary of the plant. इसमें जो moth है वो अपने eggs को locule जो होता है उस ovary का में जो लॉक्यूल होता है, अंदर का पार्ट होता है जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये एग्स ले करते हैं, और इन रिटर्न क्या करता है ये मॉथ, प्लांट को पॉलिनेशन में हेल्प करता है. सो द पॉलन ग्रेन्स जो हैं दे आर स्टिकी एंड दे गेट स्टक टू द बॉडी ऑफ द पॉलिनेटर. सो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिकी होते हैं, दैट्स वाई दे आर ईजली स्टक. माउथ पार्ट्स में ये इंसेक्ट के स्टिक हो जाते हैं, एंड व्हेन दिस इंसेक्ट गो टू suck the nectar of some other flower, so these pollens are released and the pollination occur. Okay, so this is about your pollination and the agents of pollination. Now next is your outbreeding devices. Now what happen, as you have seen कि सेल्फ पॉलिनेशन जब होता है प्लांट्स में, जिसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है. अब ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज़ द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड फर्टिलिटी और स्ट्रेंथ. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स में जो है रिप्रोडक्शन करने की क्षमता वो कम हो जाती है.
ठीक है, और उनकी फर्टिलिटी स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, एज यू ऑल नो, ये सेम फ्लावर में होता है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ वेरिएशंस या हम बोलें जीन्स जो हैं जो वो चेंज नहीं हो पाते हैं। जेनेटिकली प्लांट्स सेम रहते हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे इनमें जो है इनएबिलिटी आ जाती है, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता कम हो जाती है, यू कैन से। ओके, सो इसको इसको प्रिवेंट करने के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस बनाई गई हैं, ताकि हम ब्रीडिंग प्रोसेस को, जीन्स को चेंज मींस जेनेटिकली हम डिफरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकें। सो उसके कुछ मेथड्स हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। पहला है, प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेथड्स टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ फर्स्ट वील टॉक अबाउट हाउ ऑटोगैमीज कैन बी प्रिवेंटेड। सो इसके लिए क्या क्या तरीके हैं? जो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी है वो कोऑर्डिनेटेड सिंक्रोनाइज्ड नहीं होनी चाहिए। मींस जब पॉलन्स जो है रिलीज हो रहे हैं और स्टिग्मा उनको जब एक्सेप्ट कर रहा है, स्टिग्मा के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है कि दैट स्टिग्मा कैन एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन, इन दोनों का पीरियड जो है वो मैच नहीं करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट पोजिशनिंग ऑफ द एंथर एंड द स्टिग्मा। नेक्स्ट है कि हम स्टिग्मा और एंथर के पोजीशंस को चेंज कर दें, देन वी कैन प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। एंड द लास्ट इज दैट इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्चुअल फ्लावर। अगर हम यूनिसेक्चुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं देन ऑल्सो द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन डिक्रीजेस, क्योंकि यूनिसेक्चुअल फ्लावर्स जो होते हैं दे आर आइदर मेल और फीमेल ही होंगे। ठीक है, सो both the flowers, both the different gametes will not be available for self pollination. Now these are the three things by which autogamy can be prevented. Now we will talk about the ways by which we can prevent both autogamy and geitonogamy. Okay, now here what happen, the male and female flowers जो हैं वो different plants में अगर present हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट हैं जो कि मोनोशियस प्लांट्स हम बोलते हैं, देन ऑल्सो वी कैन प्रिवेंट बोथ द प्रोसेसेस। ओके, बोथ द टाइप ऑफ pollination. So presence of male and female flower on different plants such that each plant is either male or female, जिसको हम डायोसी भी बोलते हैं। इसमें प्लांट जो है या तो वो मेल होगा, उसमें मेल फ्लावर्स ही होंगे या फीमेली फ्लावर्स होंगे, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। बट हेयर द प्लांट शुड बी डिफरेंट, मेल प्लांट अलग हो और फीमेल प्लांट अगर अलग है प्रेजेंस दोनों की, तब हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ऑटोगैमी एंड ग्यूटेनोगैमी। सो दिस मैकेनिज्म इज प्रेजेंट इन सेवरल स्पीशीज ऑफ पपाया। सो ये जो है दिस मैकेनिज्म यू कैन सी इन सेवरल स्पीशीज ऑफ पपाया, पपीते में हमको ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। सो इन दिस लेक्चर दिस इज़ ऑल अबाउट योर pollination, agents of pollination and outbreeding devices. So here I am ending my lecture. In next lecture we will discuss about rest of the things, that is your post fertilization events. Okay, post fertilization structures क्या क्या बनते हैं, hybridizations. So this we all be studying in the next lecture. So hope you all have understood. Thank you for now.